Welcome back, viewers. It seems like the Congress leaders are finding it hard to stay away from controversies related to our Indian armed forces. Questioning the valor of our Jawans over daring military operations seems to have become a habit for them. Addressing a rally in Odisha, Prime Minister Modi hit out at Congress leader Mani Shankar Ayyar's fear-mongering statement on Pakistan possessing atom bombs. Prime Minister Modi slammed the grand old party, saying that the Congress is trying to scare its own country and its countrymen. Listen into what the Prime Minister said. वो कहते हैं संभल के चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। ये मरे पड़े लोग ये देश के मन को भी मार रहे हैं जी। ये जो पाकिस्तान के बम 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 की बातें करते हैं ना, आज तो पाकिस्तान का हालात ये है कि इन बम को संभालना कहां, वो भी उसके बस का रोग नहीं है। अब तो वो बम बेचने के लिए निकले हैं। And the latest Cong Neta, who's now joined the so-called bandwagon of Charanjit Channi and Amrinder Singh, is Telangana Chief Minister Revant Reddy. In his attempt to attack the central government over Pulwama attack, now Reddy said not only did the government fail, but no one knows if surgical strike to begin with actually took place. Reddy attacked the Modi government, questioning the central government and why it did not use RAW or IB to prevent the Pulwama attack. But the controversy really broke when he cast aspersions on the Indian Armed Forces' bravery, saying that till date, no one knows whether surgical strike took place or not. Pulwama incident is classic example. They have failed. IB क्या कर रहा है? इंटेलिजेंस नेटवर्क क्या कर रहा है? पुलवामा इंसिडेंट होने के बाद सर्जिकल स्ट्राइक में पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए मोदी जी कोशिश कर रहा है। मेरा सवाल यह है कि मोदी जी को, भाई आप क्या कर रहा है? पुलवामा इंसिडेंट क्यों हुआ है? क्यों होने दिए? देश की सुरक्षा आप क्या कर रहा है? क्यों आईबी रॉ ये एजेंसीज को क्यों इस्तेमाल नहीं किया आप? तो वहां पर आपका फेल्यूर है ना। उसके बाद आप किए नहीं किए भगवान जाने। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ नहीं हुआ किसी को पता भी नहीं आज तक। In fact, it was 3 weeks ago that Mr. Iyer gave an interview to a YouTube channel, a portion of which has now gone viral. Like they say, old habits die hard. The controversial Congress leader couldn't stop himself from, believe it or not, heaping praises on his favorite mulk. He said Pakistan is a sovereign nation with respect, and not only must India open talks with the country, it also must do so respectfully. Listen in. ये कि वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है, और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो, उनके एटम बॉम्ब है। ये भी है। लेकिन यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। मस्कुलर पॉलिसी, यदि आपके मसल्स हों और उनके मसल्स ना हों, मैंने अभी आपको बता दिया है वो जो हकीकत हम सबको पता है कि मसल्स उनके कहूटा में पड़े हुए हैं। In fact, days before, former Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi called the terror attack on IEF convoy in JNK's Poonch a pole stunt. Another Congress leader has given a clean chit to Pakistan. While speaking on 2019 Pulwama terror attack, the remark comes from former Minister and Grand Old Party's Faridabad candidate Mahendra Pratap Singh, who was called Pulwama attack a jumla and a political game which was played by the Modi government. He went on to raise question on India's Balakot response to Pulwama attack, as part of which IEF reportedly, according to him, had bombed the JAM terror training camp in Balakot, something which he is questioning. In fact, Mahendra Pratap Singh said that bombs were dropped in deserted spaces and that no one was killed. पुलवामा की आज भी बहुत बड़ी मिस्ट्री है, बहुत बड़ी कहानी है। वो थोड़े गवर्नर की कह रहे हैं, तुसी देखे ना पुलवामा की, तो पता नहीं किस मामले की कहानी निकल सकती है। और बीजेपी, मैं पुंछ की गल नहीं कर रहा, बीजेपी चुनाव के दरमियान कुछ भी कर सकती है। कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए
सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। हेमंत करकरे साहेबांचा ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती, कुठल्या अतिरेक्यातली नव्हती, तर ती गोळी एका पोलीस अधिकाऱ्यांची होती, RSS समर्पित। त्यावेळेस ते पुरावे लपवणारा देशद्रोही कोण असेल तर तो उज्ज्वल निकम आहे। आणि अशा देशद्रोहाला जर तिकीट भारतीय जनता पक्ष देत असेल तर मात्र हे देशद्रोह्यांना पाठीशी घालणारा पक्ष आहे का, हा प्रश्न येतो आहे। और जनता के इतने बड़े दरबार में कोई पार्टी अगर झूठे कह दे और मान ले जुमलाए तो उसको सजा देनी चाहिए थी आपको, लेकिन सजा नहीं दी। क्यों नहीं दी? कि दूसरा जुमला आ गया, वो था पुलवामा, वो भी आज झूठ साबित हो गया। उन्हीं के गवर्नर ने कह दिया, सतपाल मलिक ने, कि भाई मैंने तो कहा था। मोदी जी ने कहा चुप रहिए, हमारा काम है जो कर रहे हैं। ये खेल खेलना था, एक छद्म राष्ट्रवाद का एक वातावरण देश में क्रिएट करना था। हमारी जनता भोली भाली है, बह गई हिंदुस्तान पाकिस्तान, मार दिए, ये हो गए, बम फेंक दिया खाली जगह में, वो यहाँ फेंके, आज भी कोई ना मरा। ये सारे ड्रामे थे। Meanwhile, BJP has mounted a stinging attack on Congress, saying that the party's love for our neighbours knows no bounds. The Saffron Party leader said statements like that of the Telangana Chief Minister are an attack on our Indian Army's morale and valour. परंतु कह रहे ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ भी या नहीं हुआ ये पता ही नहीं है। मतलब कि सेना के मनोबल पर सवाल खड़े करना, उस पर हमला करना और सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करना, ये वही कांग्रेस है जिसने बार बार सेना के सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली, पुलवामा पे कहना कि उसके बाद जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ उसमें चील कौवे मरे, सड़क का गुंडा सेना को कहना, बार बार सेना के मनोबल को तोड़ने वाले बयान देना, पाकिस्तान को पुलवामा पर क्लीन चिट देकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कितना बड़ा एक बहाना दे रही है कि वो आतंकवाद के आरोपों से बच सके। तो रेवंत रेड्डी जी जानकारी नहीं है या इतनी मोहब्बत है कि राहुल गांधी के लिए साहब कहने वाले पाकिस्तानी मंत्री के कहने के बाद भी आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो सोते व्यक्ति को जगा कर दिखाया जा सकता है और जागा हुआ जो आंखों से भी न देखना चाहे उसे दिखाया नहीं जा सकता। और मुझे लगता है कि देश की सेना का अपमान करना ये इतनी घिनौनी बात है और ये कांग्रेस के ही कल्चर में है। ये उस समय भी हुआ था जब पुलवामा का हुआ था, उस समय भी इन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाए थे। लेकिन ये अपनी वोट की राजनीति और पार्टीबाजी की राजनीति करने हेतु इस हद तक जा सकते हैं कि ये हमारी सेनाओं के मनोबल पर, उनके शौर्य पर भी प्रश्न उठाते हैं। और देश की जनता इस बात को समझती है और इनको इस बात का सबक भी 2019 में भी दिया और अब की बार फिर से